Hello everyone. In today's class, we are going to study chemical properties of carboxylic acid. Okay, so we know the formula of carboxylic acid. So carboxylic acid can do cleavage from this side also, that is cleavage from COOH group, or it can cleave from COH bond also. At the same time, it can cleave for, if I am writing this in this way, then it can cleave from here also. So due to the different cleavage of carboxylic acid, here are the few reactions of carboxylic acid. The first reaction is reactions involving cleavage of OH bond, and due to this cleavage we are going to study the property of carboxylic acid, and that one is acidity of carboxylic acid. We know that carboxylic acid is acidic in nature, and this property is due to the cleavage of OH bond. Okay, then after that we'll see that the reactions involving cleavage of COH bond. When there is a cleavage of COH bond, then these four properties we can study. The first one is formation of anhydride, esterification, reactions with PCl5, PCl3 and SOCl2. So student, this formation of anhydride, this already we have studied. Then reactions with PCl5 and PCl3 and SOCl2, that also we have already studied. Now in today's class we are going to study about esterification. Idea about esterification we are having because we have already studied this in our class 10th. And next one is reaction with ammonia. So these four reactions we are going to study under COH bond. Next is reactions involving COOH group. Now reactions involving COOH group contains reduction and decarboxylate reactions. Okay, so decarboxylation reaction, again you have studied this in your class 11th, and that one is Kolbe's reaction where we are using soda lime. Okay, and next one is next and last reaction is substitution reactions in the hydrocarbon part. It means if we'll see that here is a hydrocarbon part, alkyl group is a hydrocarbon part. When we are substituting there any compound, then all those reactions are coming in this category, that is substitution reaction in the hydrocarbon part. And in this reaction we are going to study HVZ reaction. What is this? Let's see. And ring substitution. Ring substitution you know very well. Either the coming electron will move to the ortho, para and meta position. Okay, so now let's start with the reactions. Okay, now let's start with acidity of carboxylic acid. We know that carboxylic acids are acidic in nature. और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर हम कैसे पता कर सकते हैं? जब हम उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं. जब मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये क्या है. हम रिएक्शन देख रहे हैं किसी की भी एसिडिक नेचर की. ओके, सो यहाँ पर देखो हमने एक छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ है. इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इवन वाटर में जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, इससे तो हमें पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक इन नेचर है. जब हम ये देखते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन, और साथ में ही बनाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन. साथ में क्या कौन से आयन बनाते हैं? वो कार्बोक्सिलेट आयन. सो यही कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड रहते हैं और वही रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली प्रोसीड कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि किसी भी एसिड की जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? हम इंडिकेट करते हैं उसको pKa वैल्यू से. और Ka वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है, ये हम क्लास 11th में स्टडी कर चुके. K जो निकालते, K मीन्स क्या होता है? ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. K क्या होता है? ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, और साथ में ही यहां पर आ जाएगा RCO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन यहां पर आ जाएगा RCOOH. सो इस तरीके से हम K की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं. बट जैसे हमें पता है कि किसी की एसिड की स्ट्रेंथ अगर बताना हो तो उसकी pKa वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करते हैं. और pKa वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस लॉग A के साथ में. अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं. वो है कि अगर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pK, अगर pKa की वैल्यू स्मॉलर होगी तो वो एसिड डेफिनेटली स्ट्रांग होता है. अब देखो यहाँ पर हमने कुछ बताया है कि किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया है कि भाई कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, कौन सा मॉडरेटली स्ट्रांग होता है.
तो अगर किसी की pKa वैल्यू 1 से कम आती है तो उस एसिड को कैसे कंसिडर किया जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहते हैं? अगर उसकी pKa वैल्यूज जो है आ रही है 1 to 5 के बीच में, और अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू 5 to 15 के बीच में आ रही है तो उसे कहा जाता है वीक एसिड। बट अगर किसी एसिड्स की एक्सट्रीमली वीक एसिड, उसको कब कहा जाता है? अगर उसकी वैल्यू मोर देन 15 आ रही है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से हम इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इवन हमने देखा एल्कोहल, फिनॉल्स, तो क्या होता है? एल्कोहल जो है ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलो इनके स्ट्रक्चर्स दिए गए, पहले स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर्स है उनके आयंस के। जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है। अब कार्बोक्सिलेट आयंस में देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये जो निगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि भाई निगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स हो रहा है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ही डिस्पर्स हो रहा है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में देखेंगे हम, यहाँ पर ये एक ही ऑक्सीजन होने की वजह से यहां से बाद में चार्ज डिस्पर्स होता है इन कार्बन के ऊपर, जो कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और अगर हमें इसका आंसर लिखना है वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो हम देखो कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमने सब पॉइंट्स लिख लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलेट आयन का, एसिड का, वो होता है कार्बोक्सिलेट आयन, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबिलाइज्ड किया जाता है बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, जिसमें कि निगेटिव चार्ज किसके इसके ऊपर जा रहा है? ये निगेटिव चार्ज जा रहा है दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर। बट अगर हम वही फिनॉक्साइड की बात करें तो फिनॉक्साइड आयन में हमारा ये निगेटिव चार्ज एक पहले तो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, दूसरा जब डीलोकलाइज्ड होता है तो वो इस तरीके से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम पे जाएगा, और इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये मोर स्टेबल होता है देन फिनॉक्साइड आयन। और स्टेबिलिटी भी हमने बता दी कि किस तरीके से होता है। अब देखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो नेचर है, एसिडिक कैरेक्टर, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है जब भी कोई ग्रुप इसमें ऐड होता है। तो अभी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो हमें पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा क्या करते हैं? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिक्रीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी इसके ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, सो वी शुड बी एबल टू सॉल्व इफ 2 NO2 ग्रुप इज देयर या CH3 ग्रुप आता है। जैसे अगर हमारे पास में अगर ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है NO2 और यहाँ पर साथ में COOH है, ये भी मैं बात करती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर COOH है और यहाँ पर CH3 है। और अगर आपसे इस दोनों में से पूछा जाए कि भाई दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो डेफिनेटली NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर्ड टू सेकेंड वन। तो हमने ये किसके बेसिस पे डिसाइड किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये क्यों इतना ज्यादा स्टेबल होता है ये हमें बताना पड़ेगा फिनॉक्साइड आयन से। और सेकंड जो है हम ये देखेंगे कि भाई अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया, तो वो एसिडिटी पे किस तरीके से इफेक्ट करेगा। स्टरीफिकेशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले। और क्या रिएक्शन है? वो रिएक्शन है कि RCOOH प्लस अल्कोहल, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, ये एस्टर बनाते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ चुका था। अभी चलो इसका जल्दी से मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ये काफी इजी है, हम इस टाइप का मैकेनिज्म पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हमें दिखता है कि ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से जैसे ही H प्लस आयंस आएगा, जैसे हमें पता है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये H प्लस आयंस को ये अपना जो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड देते ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और H भी अटैच हो जाएगा। अब देखो H अटैच हो गया, सब हो गया। अब ये कार्बन तो अभी तो कंप्लीटली फिल्ड है, बट जैसे ही कार्बन देखता है कि एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल आ गया जिसके ऊपर क्या है? लोन पेयर्स है, तो वो लोन पेयर्स क्या होता है? ये ट्रांसफर करता है कार्बन के ऊपर।
अब कार्बन को इसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, और कार्बन पॉजिटिव कैसे होता है? कार्बन पॉजिटिव होता है जब ये क्या करता है, यहाँ का जो बॉन्ड है वो किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, ताकि वो कंप्लीटली ऑक्सीजन जो है अपनी लोन पेयर्स के साथ में यहाँ पर स्टेबल हो सके। फिर ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी के बाद में देखो यहाँ पर ये अटैच हो रहा है, और साथ में लास्ट में जो है इस ऑक्सीजन को भी स्टेबल किया जा रहा है, और इसीलिए वो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है मतलब यहाँ से ये प्रोटॉन को हटाना चाह रहे हैं कि भाई प्रोटॉन को हट जाएगा तो ये बॉन्ड इसके पास आएगा, और ऑक्सीजन जो है ये अपने 2 लोन पेयर्स के साथ में स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये प्रोटॉन को हटाते हैं, इसके ऊपर का जो चार्ज रहता है वो आ जाता है यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने। क्यों आ रहा है वो? क्योंकि ये बॉन्ड लेकर कौन चला गया, ये बॉन्ड लेकर ऑक्सीजन चला गया एज अ H2O, ठीक है। जब ये एक बॉन्ड लेकर चला गया है तो यहाँ पर देखो ये प्रोटोनेटेड एस्टर बन रहा है, मतलब सिर्फ एक H जो है इसके पास एक्स्ट्रा है, एंड लास्ट में वही H जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि वो क्या हो, अगर H रिमूव हो गया तो वो वापस से पेयर किसके ऊपर आ जाएगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन का, और एस्टरिफिकेशन में हमें पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसीलिए हम पूरे मैकेनिज्म में रिवर्सिबल का एरो दिखा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रिएक्शन विथ अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता है। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाता है, तो अमोनिया में क्या होती है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले तो ये H यहाँ से ले लेते हैं और ये बना लेते हैं अमोनियम एसिटेट बना लेते हैं, क्योंकि अमोनियम एसिड में से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो क्या बना पाते हैं, एसिटामाइड। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, एसिटामाइड बनाता है। अब हम आते हैं कि क्लीवेज, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन जब हो रहा है तो रिडक्शन में देखो RCOH क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरिन भी लेते हैं हम, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, और ये अल्कोहल में हो रहा है। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, ठीक है। तो ये भी रिडक्शन एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके बाद में हम डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन जो होती है सोडा लाइन के साथ, वो हम क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन की तरफ। अब देखो इस पे ध्यान से समझो, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, इसको स्पेसिफिक एक नेम भी दिया गया है, और वो नेम क्या है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इसको कॉमनली कहा जाता है HVZ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना कहेंगे कि भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं। हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में एट अल्फा पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन ऐड कर रहे हैं। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में हैलोजन ऐड हो रहा है, और वो भी कौन से पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो। जैसे यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। सो ये अल्फा कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में, हम प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड स्टूडेंट इसी रिएक्शन को कहा जाता है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। आई होप आप सभी को आज के भी ये रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।